Hello everyone, once again welcome to my channel Step by Step in Physical Education. I am your subject expert Dr. Ritika Bhatia. Today in this video I will teach you class 11 chapter 6 physical activity and leadership training. So before starting this video, let's see the overview of this chapter, that what are the topics we will cover in this video. So let's start. The topic in this chapter is, first one is leadership qualities and role of a leader, creating leaders through physical education, meaning, objectives and types of adventure sports. There are few adventure activities given in this topic like camping, rock climbing, trekking, river rafting, mountaineering, surfing and paragliding. And what are the safety measures used to prevent these sports injuries? So today we will discuss, I will teach you about the leadership qualities and role of leader and how a leaders can be created through physical activity participation. So as all of you know that what is leader, who is leader, what is leadership quality, as the name it's already tell you that leadership, the person, individual who leads the other, means here you can see that according to Canadian Forces, the definition of leadership is the art of influencing human behavior to accomplish a mission in the manner desired by the leader. What does it mean? कि वो ऐसा काम, ऐसा टास्क जो एक लीडर चाहता है, तो दूसरे लोगों के थ्रू जिस काम को करवाना है उसको, तो उनको किस तरीके से इन्फ्लुएंस करके अपने तरीके से काम कराया जाए, दैट इज़ कॉल्ड लीडरशिप. एज ऑल ऑफ यू नो दैट एवरीवन, अपने आसपास आप सब देखते हैं कि हर जगह पे कहीं ना कहीं हायर अथॉरिटीज़ होती हैं, टीम लीडर्स होते हैं, मॉनिटर्स होते हैं, इवन इन आवर क्लासरूम ऑल्सो, even in games activity also. When you go for any school activity or any competition, then there also a team captain for that particular activity. In your classes there is a class monitor. So all these are called leaders, जो आपको किस तरीके से वर्क करना है, पर्टिकुलर तरीके से क्या करना है, उसके लिए आपको हेल्प करते हैं, आपको लीड करते हैं पर्टिकुलर टास्क को, पर्टिकुलर मिशन को फुलफिल करने के लिए. The dictionary meaning of the leader is also one who leads others, as I told you. According to the few philosophers, they also have given the definition of leaders in their own terms. According to R. Shockley, leadership is the process of influencing the activities of an organized group for any goal achievement. Means कि किसी भी गोल को अचीव करने के लिए पर्टिकुलर ऑर्गेनाइज ग्रुप को इन्फ्लुएंस करना, एक वो प्रक्रिया जो पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ को, पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए एक ऑर्गेनाइज ग्रुप के ऊपर यूज़ की जाती है, दैट इज़ कॉल्ड लीडरशिप. अकॉर्डिंग टू PM Josephs, it is a quality which enables the person to take initiative and guide others in performing some required task. Meaning the same thing he is also saying कि एक इंडिविजुअल पर्सन की वो क्वालिटी जो उसको इनिशिएटिव लेने के लिए, दूसरों को गाइड करने के लिए, किसी काम को फुलफिल करने के लिए, उनको हेल्प करने के लिए जो अकम्प्लिश करती है, उसको कैपेबिलिटी उसकी इंक्रीज करती है, दैट इज़ कॉल्ड लीडरशिप. सो आई होप कि आपको मीनिंग समझ आ गया होगा कि लीडरशिप क्या होता है या लीडर क्या होता है. नाउ हियर वी विल सी दैट व्हाट आर द क्वालिटीज अ लीडर और एन इंडिविजुअल शुड हैव. तो बीइंग अ लीडर you have a quality of teamwork, motivation, competency, skills, responsibility, communication, power and support.
ये जितनी भी यहाँ क्वालिटीज़ मेंशन की गई है, इन सब क्वालिटीज़ को इनकलकेट करने के बाद एक इंडिविजुअल बीइंग अ गुड लीडर कहा जा सकता है। अगर किसी लीडरशिप में कोई भी एक क्वालिटी नहीं होगी, कि अगर उसको कम्युनिकेट करने का तरीका नहीं आता होगा कि अपने ग्रुप के साथ, दूसरे लोगों के साथ किस तरीके से कम्युनिकेट करना है, काम को किस तरीके से करवाना है, उसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी की सेंस नहीं होगी बिल्कुल भी कि काम को कब करवाना है, कैसे करवाना है, वो सपोर्टिव नहीं होगा अपने ग्रुप के लिए टास्क करवाने के लिए, उसमें टीम वर्क की कैपेबिलिटी नहीं होगी, वो अपने ही काम को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देगा, दूसरों की वैल्यूज़ को, दूसरों के टाइम को वैल्यू नहीं देगा, उनको मोटिवेट नहीं करेगा, उसके अंदर स्किल्स नहीं होंगी इम्प्रूव करने की, तो दैट पर्सन कुड नॉट बी अ गुड लीडर. So if you want to be a good leader, then all these qualities you have be in yourself. Or if you don't have these abilities or capabilities or qualities, then you have to be inculcate in yourself. और ये इनकलकेट कैसे की जाएंगी कि जब आप उसके ऊपर काम करेंगे. अगर आप किसी को लीड करना चाहते हैं, किसी ग्रुप को हेल्प करना चाहते हैं, देन यू हैव टू बी वर्क इन दिस मैनर कि जिससे कि आपका काम भी दिखाई दे और आप दूसरे ग्रुप्स के लोगों को जब हैंडल करते हैं तो आपको उनसे प्रॉपर सपोर्ट भी मिले. तो दीज आर द क्वालिटीज ऑफ लीडरशिप. अब उसका रोल क्या होता है? एज आई टोल्ड यू, लीडर जो एक टीम को लीड करता है, तो वो लीड करने का रोल क्या होता है कि खाली बोल देने से ही लीड हो जाता है, सपोर्ट कर देते हैं, मोटिवेट कर देते हैं तो उसी से लीडिंग हो जाती है? नो. बीइंग अ लीडर, आपके कुछ रोल्स होते हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं. हियर यू कैन सी दैट कि लीडरशिप का जो वर्ड दिया हुआ है, एक्रोनियम्स दिया हुआ है, उसको हमने किस तरीके से एक्सप्लेन किया है कि वो अपने वर्क के लिए, अपनी टीम के लिए लॉयल होना चाहिए. उसका फर्स्ट रोल है ये. उसकी लीडरशिप की, एक लीडर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग जो उसका एक रोल होता है कि उसको क्या करना है, क्या नहीं करना चाहिए, वो अपने वर्क के लिए, अपनी टीम के लिए लॉयल होना चाहिए. एपैथी होनी चाहिए उसमें अपने ग्रुप के लिए, अपने ग्रुप की गलतियों के लिए अकाउंटेबल होना चाहिए. अकाउंटेबिलिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके अंदर होनी चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसने ग्रुप में टास्क दिया, वो टास्क टाइम से कंप्लीट नहीं हो पाया तो उसकी जितनी भी प्रॉब्लम्स थी वो उसने ग्रुप के ऊपर डाल दी. नहीं, ही शुड बी अकाउंटेबल फॉर ईच एंड एवरीथिंग ऑफ हिज और हर ग्रुप. अपने पर्टिकुलर टास्क को लेके उसको डिटर्मिनेंट होना चाहिए, उसको किस तरीके से अपनी ड्यूटी करनी है, हर काम को तरीके से करवाना आना चाहिए. एनकरेजमेंट देना आना चाहिए उसको, अपनी टीम को, ग्रुप को, कि अगर वो कुछ भी किसी भी वर्क के ऊपर या किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क कर रहे हैं तो उसको एनर्जेटिक होना चाहिए, एनकरेजमेंट देना चाहिए. टीम, कई बार टास्क ऐसा होता है कि टीम मेंबर्स जो होते हैं बहुत थक जाते हैं या बहुत मेंटली और फिज़िकली प्रेशर तो होते ही होते हैं, मेंटली प्रेशर भी होता है, तो एग्जॉस्ट हो जाते हैं. तो उसके अंदर वो क्वालिटी होनी चाहिए, उसका ये रोल है कि वो टीम को एनर्जेटिक टॉक से, उनको मोटिवेशनल टॉक से, उनको उनके वर्क के लिए और ज़्यादा अच्छे से रेडी कर सकें. रिस्पेक्ट होनी चाहिए उसके अंदर अपनी टीम के लिए. अगर वो टीम लीडर है और हायर पोजीशन पे है तो इट डजंट मीन कि वो अपने टीम मेंबर को या अपने नीचे काम करने वाले लोगों को किसी भी तरीके से बिहेव करे. नो, इट्स रॉन्ग. इट इज़ अ रॉन्ग थिंग. इफ़ यू आर ए लीडर, यू वांट टू बी अ लीडर ऑफ अ ग्रुप, यू वांट कि सब आपको रिस्पेक्ट करें, आपके काम को समझें, आपको इम्पोर्टेंस दें, तो यू शुड ऑल्सो हैव टू बी गिव रिस्पेक्ट टू अदर्स, आइदर योर जूनियर, आइदर योर टीम मेट्स, आइदर योर ग्रुप मेट्स. ऑल दिस सेल्फनेसनेस, कि उसके अंदर स्वार्थ की भावना नहीं होनी चाहिए. अगर वो कुछ भी काम कर रहा है तो उसके अंदर वो स्वार्थीपना नहीं होना चाहिए कि नहीं ये काम ग्रुप ने किया है और उसका सारा इनिशिएटिव वो अकेले ले ले. नो, ऐसा नहीं होना चाहिए एक लीडर को. ऑनरेबल एंड हम्बल होना चाहिए उसको. बहुत लोअर लेवल पे जाके उसको अपनी टीम के साथ मिक्सअप होकर काम करना चाहिए, जिससे कि उसकी वर्क की क्वालिटी भी बनी रहे और लोग उसके साथ उसको रिस्पेक्ट देने के साथ साथ उसकी बातों को माने भी और सुने भी सही. इंटीग्रिटी एंड इनोवेशन, कि उसके अंदर इंटीग्रेटेड स्किल्स होनी चाहिए, इनोवेशन करने की स्किल्स होनी चाहिए कि अगर कोई काम को करने के लिए मुश्किल आ रही है तो उस काम को नए तरीके से या उसको मॉडिफाई करके किस तरीके से किया जा सकता है जिससे कि वो काम इजी भी लगे और टाइम पे फुलफिल भी हो जाए.
पैशन फॉर एंड प्राइड इन वर्क, कि कुछ भी काम दिया जा रहा है टीम के साथ मिलके करना पड़ रहा है और कई बार टीम अगर नहीं कर पा रही है तो उस काम को वो आगे बढ़ के खुद कर सके। अगर उसके अंदर खुद काम के लिए पैशन होगा तो ऑब्वियस है उसकी टीम भी उसके लिए पैशनेट होकर काम करेगी, और जैसा भी काम होगा वो उस लेवल पे खुद जाके अगर काम करेगा तो उसकी टीम भी हिचकिचाएगी नहीं उस काम को टाइम से और डिटरमिन होकर कंप्लीट करने के लिए। तो आई होप कि एक लीडर का रोल क्या होता है, उसकी क्वालिटीज़ क्या होती हैं। जो उसकी क्वालिटीज़ होती हैं वही उसका एक मेन रोल होता है कि उसको फुलफिल करना होता है अपने टास्क के थ्रू, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के थ्रू। नाउ हाउ वी कैन क्रिएट लीडर्स थ्रू फिजिकल एजुकेशन, कि अगर कोई इंडिविजुअल लीडर नहीं है तो उसको हम एज ए लीडर कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उसके अंदर ये एबिलिटी कैसे क्रिएट कर सकते हैं फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल एक्टिविटीज़ के थ्रू। तो बीइंग अ टीचर, बीइंग अ हायर अथॉरिटीज़, बीइंग अ लीडर, अब हमेशा हम तो एक ही चीज़ को लीड नहीं कर सकते हैं, हमको दूसरों को भी अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए। तो वो अपॉर्चुनिटीज़ देने के लिए हमको अपने जैसे अगर दूसरे लीडर और बनाने हैं तो हम कैसे उनको क्रिएट करेंगे। तो फर्स्ट वन इज आइडेंटिफाई द स्टूडेंट्स विद डिफरेंट स्किल्स लाइक कम्युनिकेशन, मोटिवेशन स्किल्स, प्लानिंग एंड ऑब्जर्विंग देयर प्रोग्रेस। You can give any student in your class, in your group, there's a lots of people, there's a lots of students, so you can give the responsibilities, छोटे छोटे काम की, छोटी छोटी एक्टिविटीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी पर्टिकुलर डिफरेंट बच्चों को आप दे सकते हैं, जिससे कि आप उनको मॉनिटर कर सकते हैं कि उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स, उनकी मोटिवेशनल स्किल्स, उनकी प्लानिंग किसी वर्क को लेके, उस पर्टिकुलर वर्क को लेके कैसी है, और आप उनकी प्रोग्रेस को ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिससे आप ईजिली पता कर सकते हैं कि वो पर्टिकुलर स्टूडेंट और पर्टिकुलर इंडिविजुअल हैविंग अ लीडरशिप ट्रेट्स और नॉट। आइडेंटिफाई न्यू स्टूडेंट with leadership qualities and provide them opportunity to lead, कि नए नए बच्चों को आइडेंटिफाई करना, उनकी किसी भी क्वालिटीज़ को देख के उसके ऊपर वर्क करना और उनको लीड करने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना। अप्रोच फॉर इम्प्रूविंग लीडरशिप स्किल्स, कि उनके अंदर क्या क्या लीडरशिप स्किल्स हैं जिससे कि उनको अप्रोच करके इजीली उनको फाइंड आउट करने में आपको प्रॉब्लम ना हो, इजी हो। तो कैसे करेंगे? गिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, अगर आपके स्कूल में या आपके ऑफिस में कोई इवेंट होने जा रहा है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप दे सकते हैं, जिससे आपको पता लग जाएगा कि वो इंडिविजुअल किस तरीके से उस प्रोग्राम को प्लान कर रहा है, किस तरीके से एक्टिविटीज़ के ऊपर वर्क कर रहा है। नहीं है अगर ऐसा कोई स्टेज नहीं मिल पाता या कोई ऐसा टाइम नहीं मिल पाता है तो आप उनको लीडरशिप ट्रेनिंग या लीडरशिप कोचिंग होती हैं, उनको उसकी ट्रेनिंग दिलवा सकते हैं, जिससे कि उनके अंदर वो एबिलिटी इनकलकेट हो और उनके अंदर खुद वो चीज़ आए और वो आगे से आके आपसे काम करने के लिए बोलें। प्रोवाइड रेगुलर अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव, कि अगर कोई इंडिविजुअल या कोई स्टूडेंट कुछ काम कर रहा है या उसने कुछ ऐसा काम किया है तो उसको अप्रिशिएट करके उसको अगर कहीं इम्प्रूवमेंट के चांसेस हैं तो उसको और इम्प्रूव किया जाए, जिससे कि उसके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी इनकलकेट हो, उसके अंदर कॉन्फिडेंस आए। क्योंकि कॉन्फिडेंस ही एक ऐसी चीज़ होती है जो एक लीडर को कुछ भी करवा सकती है लीडर से। अगर यू हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस, यू आर सेल्फ मोटिवेटेड, देन यू कैन बी अ गुड लीडर। क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन ऐसे ट्रेट्स होते हैं जो एक इंडिविजुअल को हर काम को, हर प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में हेल्प करते हैं। सो टुडे in this chapter we will teach only on these points. Tomorrow we will discuss about the adventure sports activities one by one. There are so many adventure activities given, so one by one I will discuss with you these adventure activities, what safety measures should have to be taken while participating in these activities, and what are the equipments needed for these activities. So thank you.